Good morning, everyone. This is chapter 12 and exercise 12.1. And the first question is get the algebraic expression in the following case using variable, constant, and arithmetic operation. So, they have given you the question in the statement form, and you have to follow the instructions and write the expression. So, firstly, it is given that subtraction of z from y means we have to subtract z from y means y minus z. This is the expression for the given situation. Now, 1/2 of the sum of numbers x and y. 1/2 means 1/2 of the given numbers x and y means you have to firstly sum off. तो पहले हम क्या करेंगे, सम करेंगे एक्स वाई का एंड देन हमें इसका हाफ निकालना है. सो हाफ ऑफ दिस इज़ 1/2 और वी कैन से एक्स प्लस वाई अपॉन 2. अगर आप ऐसे ना लिखना चाहें सो एक्स प्लस वाई अपॉन 2, क्योंकि किसी का हाफ क्या होता है. सपोज आपसे कहा गया 4 एंड 5 को ऐड करके उसका हाफ करिए, तो आप क्या करेंगे 4 + 5 अपॉन 2. यही तो लिखेंगे. एग्जैक्टली यहाँ पर है, नंबर्स हैं आपके x एंड y एंड देन यू हैव टू डिवाइडेड बाय 2. Now the next is the number z is multiplied by itself means you have to multiply z for 2 times. Z into z, that will give you z square. Next है numbers x and y both squared and added. So you have firstly you have to square the both of them x and y. You will write x square and y square and then add these two numbers, then add them. So it is x square plus y square. So this is the expression for the given situations. And next is sum of the numbers a and b subtract from their product. So firstly we will find the sum a plus b subtracted from their product means ये किस में से माइनस होंगे, अपने प्रोडक्ट में से. मीन्स व्हेन यू मल्टीप्लाई देम मीन्स a into b. So a into b minus a plus b, that will give you ab minus a plus b, and this will be the expression for the given statement. Okay, please read very carefully the given situations so that you can come to know how to express them in the form of equation or how to express them as a expression. Now, second is identify the term and their factors in the following expression. जैसे आपने 4th 5th में पढ़ा है, आपको जैसे 9 दिया है तो 9 के फैक्टर्स करने हैं, तो 3 into 3 कर दिया. फिर 3 को क्या करना है 3 into 1 एंड इस वाले 3 को भी 3 and 1 लिखते हैं. तो ये क्या फैक्टर ट्री है ना, तो आपको इसी के फॉर्म में दिखाना है कि कैसे करेंगे. सो फर्स्टली यू हैव द एक्सप्रेशन x minus 3. सो एक्सप्रेशन इज x minus 3. आपको ये तीनों चीज़ें बतानी है, एक्सप्रेशन, फैक्टर, टर्म्स बताने हैं और फैक्टर ट्री बताना है. तो टर्म्स कौन कौन से हो गए, पहला टर्म है x और दूसरा टर्म है -3. फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x का x हो जाएगा, -3 का -3 का हो सकता है -1 into 3 भी हो सकता है. तो देखिए सबसे पहला एक्सप्रेशन है हमारा x -3, उसको हमने दो पार्ट में अलग अलग कर लिया, दैट इज़ x एंड -3. नाउ x के फैक्टर्स होंगे x into 1, क्योंकि 1 की जिससे भी मल्टीप्लाई होती है वही नंबर इटसेल्फ हमें मिल जाता है. एंड देन 3 का क्या हो जाएगा, -1 into 3 हो जाएगा. ठीक है, क्लियर. नाउ सेकेंड पार्ट हम सेकेंड पार्ट बी पार्ट देखते हैं. इट इज़ 1 + x + x square. तो हियर देयर आर 3 टर्म्स, 1 and then x and then x square. Now for these 3 terms we have 3 or 4 factors. For 1 we have 1, for x we have only x, and for x square we have x into x means 1 x and x square. For 1 we have factors 1 1, for x we have x into 1, and for x square we have x into x. Next is part C, that is y minus y cube. This is called क्यूब. 3 को जब किसी भी वेरिएबल की पावर 3 होती है देन इट इज़ कॉल्ड क्यूब. y minus y cube. So it will be y. Now here we have minus y minus y minus y. 3 times when you multiply minus y, it will be equal to minus y
क्यूब, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इंटू वाई क्यूब। दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। आप चाहें तो इसके तीनों टर्म्स -y भी ले सकते हैं या -1 इंटू वाई भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए y का हमने जो फैक्टर लिखा है दैट इज़ 1 इंटू वाई। जब हमें नॉर्मली एक ही वेरिएबल दिया होता है तब हम साथ में 1 लगाते हैं, बट जब हमें y क्यूब या एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब दिया होता है तब हम 1 को इग्नोर कर देते हैं। बट इफ़ यू हैव -y क्यूब या -x स्क्वायर देन हम क्या करते हैं, देन हम इसको इग्नोर नहीं करते हैं, तब हम -1 एज ए फैक्टर लेते हैं एंड देन x इंटू एक्स। जैसे इस केस में देखिए ऊपर हमें एक्स स्क्वायर दिया है, वहाँ पर देखिए ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया है तो मैंने डायरेक्टली टर्म्स x इंटू एक्स ले दिए। अगर ये -x स्क्वायर होता तो मैं लिखती -1 फिर अकॉर्डिंग टू ट्री -1 x एंड देन x, तब मैं इसको ऐसे लिखती। बट यहाँ पर प्लस का है दैट्स वाई वी विल रिमूव दिस 1 एंड वी विल राइट ओनली x इंटू एक्स। अब देखिए नीचे जो केस है इसमें -y क्यूब है, तो -y क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, 1 विल बी -1 एंड देन y and third is y. Okay, now moving on to the next part, it is 5x square minus plus 7x square y. So the expression is this, terms are 5x y square and 7x square y. Now the factors will be 5x y y and 7x x y. Okay, ऐसे ही सब कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अदर देन कांस्टेंट। यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट टर्म फाइंड करना है। हमारे पास कोफिशिएंट दो तरीके के होते हैं, एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जिनमें नंबर्स होते हैं जैसे 0.8, 5, 6, 7, 1, -1, -2, ये सब होते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जिसमें नंबर्स आते हैं। एक होती है कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट, मींस सपोज आपको दिया है x y और आपसे पूछा जाए कि y का कोफिशिएंट क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है, तो आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पर इस केस में। और अगर आपको 2y दिया है तो इस केस में आपका कोफिशिएंट एज ए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आपका हो जाएगा 2। बट अगर आपसे पूछा जाए ये क्वेश्चन देके एक्स वाई देके कि व्हाट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ y, तो आप लिखेंगे x। ठीक है, बी वेरी क्लियर विद दिस कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहाँ पूछा गया है और वेरिएबल कोफिशिएंट कहाँ पूछा गया है। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालेंगे। यहाँ देखिए मैंने एक टेबल में प्रिपेयर करा है, आपको एक्सप्रेशन दिया है 5 - 3t स्क्वायर। यहाँ पर टर्म है आपका -3t स्क्वायर एंड कोफिशिएंट है आपका -3। ऐसे ही आपको दिया है 1t t स्क्वायर t क्यूब। सो t स्क्वायर एंड t क्यूब आर 3 टर्म्स वेयर 1 1 1 इज कोफिशिएंट ऑफ ऑल द 3 टर्म्स। नाउ हियर यू हैव x 2xy 3xy। सो x का कोफिशिएंट है 1, 2xy का 2 एंड 3xy का 3। ऐसे ही -p स्क्वायर q स्क्वायर में आ जाइए तो देखिए -p स्क्वायर q स्क्वायर एक टर्म है और दूसरा टर्म है 7pq। देन द अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टर्म वी हैव -1 एज ए कोफिशिएंट एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड टर्म वी हैव 7 एज ए कोफिशिएंट। ऐसे ही 1.2a प्लस 0.8b में 1.2a is the term and 0.8b is the another term. In the first term we have 1.2 as a coefficient and in the second term we have 0.8 as the coefficient. In next it is 2l plus b. So firstly we will separate it as 2l and 2b. Now in the 2l you can see you have the coefficient 2 and in 2b you also have the coefficient 2. Okay, now moving on to the next question, that is fourth question, identify terms which contain x and give the coefficient of x. यहाँ पर आपको उन टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जिनमें सिर्फ आपको x मिल रहा है, सिर्फ x। x का मतलब ये नहीं है कि आप x स्क्वायर भी निकालेंगे ना, x मीन्स ओनली x। ठीक है, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, और आपको x का कोफिशिएंट बताना है। किसका कोफिशिएंट बताना है, सिर्फ x का। तो देखिए यहाँ पर मैंने टेबल बनाया है। आपका पहला क्वेश्चन है y स्क्वायर एक्स प्लस वाई। हेयर
आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, इन विच यू हैव x, सो द टर्म इज y स्क्वायर x, दिस इज नॉट द टर्म विच इज़ हैविंग x। ये जो y है वो एक ऐसा टर्म है जिसमें x नहीं है, तो हम इसको मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमसे वो टर्म पूछा गया है जिसके साथ x हो। ठीक है, अच्छा x के साथ कोफिशिएंट क्या है, y स्क्वायर है, क्योंकि हमसे x का कोफिशिएंट पूछा गया है इसलिए हम y स्क्वायर लिखेंगे। हमसे ये नहीं बोला गया है कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए। वैसे नॉर्मली जब कोफिशिएंट की बात होती है तो हमेशा न्यूमेरिकल नंबर ही बताया जाता है, बट इन दिस टाइप ऑफ केस जब आपसे इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया जाए कि y स्क्वायर x या x स्क्वायर y या z स्क्वायर x, इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको दिए जाएं तो उन केसेस में आपका जो कोफिशिएंट होता है वो उस पार्ट के अलावा, मींस जैसे आपसे x का कोफिशिएंट पूछा गया है तो x के अलावा जितने भी उसमें टर्म्स होंगे वो सारे के सारे कोफिशिएंट होंगे। जैसे इसमें देखिए 13y स्क्वायर माइनस 8yx, सो द टर्म विल बी माइनस 8yx एंड द कोफिशिएंट इज माइनस 8 इंटू वाई। सो अदर देन x ऑल द टर्म ऑल द टर्म्स ही कहेंगे, ऑल द पार्ट्स ऑफ दैट टर्म विल बी कंसिडर एज कोफिशिएंट। Okay, now second is x plus y plus 2, so here we have only one term x and the coefficient of x is 1. In this we have zx, this is also x, so for x it is 1 and zx we have coefficient z. In this we have two terms as x, सॉरी ये थोड़ा ऊपर नीचे टाइप हो गया है, ये वाला जो x है ये आप सेकंड वाले में लिख लीजिएगा, ये गलती से यहाँ चला गया है, इसका आंसर भी यही लिख लीजिएगा क्योंकि इस इक्वेशन में x दिया हुआ है। ठीक है, सो x यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर दो टर्म्स होंगे, एक x होगा जिसका कोफिशिएंट 1 होगा और एक xy होगा जिसका कोफिशिएंट y होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई इनटू नॉमिनल, बायनॉमिनल एंड ट्राइनॉमिनल। हमें पता है मोनोनॉमिनल वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, बायनॉमिनल वो होते हैं जो दो अनलाइक टर्म्स रखते हैं, मतलब अनलाइक मीन्स जो एक दूसरे से मिलते जुलते ना हो, एंड ट्राइनॉमिनल वो होते हैं जिनमें 3 टर्म्स होते हैं। सो फर्स्ट इज 4y माइनस 7z। देखिए एक y है और एक z है, तो ये दोनों मैच नहीं करते हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए इसको बोलेंगे बायनॉमिनल। y स्क्वायर इज a single term, that's why it is a mononomial, and x plus y minus xy। अब देखिए इसमें मिले जुले टर्म्स हैं एक दूसरे से, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ y है, यहाँ पर भी y है, तो ये बायनॉमिनल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बायनॉमिनल में जो भी दो टर्म होते हैं वो एक दूसरे के से मिलते जुलते नहीं, अनलाइक टर्म्स होते हैं, ये मिलते जुलते हैं। ये मोनोनॉमिनल भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मोनो में क्या सिर्फ एक ही टर्म होता है, तो इसलिए ये क्या है, ये ट्राइनॉमिनल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं। अब ए बी माइनस ए माइनस बी इट इज़ ऑल्सो ए ट्राइनॉमिनल। 5 माइनस 30 ये बायनॉमिनल है क्योंकि 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। ये देखिए दिस इज़ ए कांस्टेंट नंबर एंड दिस इज़ ए वेरिएबल नंबर। ठीक है, अनलाइक टर्म्स हैं। इन दिस वी हैव 2 टर्म्स 4p स्क्वायर क्यू एंड p क्यू स्क्वायर, तो दिस इज़ ऑल्सो है बायनॉमिनल, अनलाइक टर्म्स है। ये सेम नहीं है क्योंकि अगर आप 4pq कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा p माइनस q, तो ये देखिए ये टर्म कहीं से भी सेम नहीं है। बायनॉमिनल में 2 अनलाइक टर्म्स होते हैं और ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट है z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8। सो इन दिस केस इट इज़ ए ट्राइनॉमिनल केस, वी हैव 3 टर्म्स एंड इन दिस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिस इज़ ए बायनॉमिनल क्योंकि दोनों टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट हैं, एक है a स्क्वायर और दूसरा है b स्क्वायर। दिस इज़ ऑल्सो ए बायनॉमिनल। इन दिस फर्स्टली यू विल टेक z एज ए कॉमन टर्म, देन यू विल हैव z प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए 2 जो टर्म्स आपको दिए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, या फिर आप यहाँ पर भी देख के निकाल सकते हैं। देखिए एक जो है वो z है और एक है z स्क्वायर, तो ये 2 बिल्कुल अलग अलग टर्म्स हैं, ये सेम नहीं कहे जाएंगे क्योंकि इसमें पावर 1 है और इसमें पावर 2 है। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म इज ए लाइक और अनलाइक। अब आपको बताना है लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं। सो 1 and 100 दीज आर लाइक टर्म्स बिकॉज दे बोथ आर
न्यूमेरिकल नंबर्स एंड दे हैव सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स। 1 के फैक्टर करेंगे तो 1 1 आएगा, और 100 के फैक्टर करेंगे तो भी 1 तो आएगा और साथ में और भी फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है -7x एंड 5/2x। ये भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि दोनों में ही जो x का टर्म है वो क्या है, उसका फैक्टर सेम आएगा। जैसे अगर आप 7x के निकालें तो क्या आ जाएगा, -7 और एक टर्म आ जाएगा आपका x। ऐसे ही 5/2 का अगर आप निकालेंगे तो एक आएगा 5/2 और एक आएगा x। तो दोनों में x जो है वो कॉमन है, दैट्स वाई दे आर लाइक टर्म्स। नेक्स्ट है -29x एंड -29y। ये अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि एक में x है एज ए फैक्टर और एक में y है। सिर्फ कोफिशिएंट कॉमन होने से वो लाइक फैक्टर्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में आपको लाइक टर्म्स निकालने हैं। लाइक टर्म्स मतलब जिनके जो फैक्टर्स हों वो कॉमन हो। सो इसमें देखिए आपका पहला हो जाएगा XY² एंड 2XY²। ओके, नेक्स्ट है हो जाएगा -4XY² एंड 20XY², x² y, सॉरी। ये देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, वेरिएबल देखते हैं। देखिए दोनों के वेरिएबल सेम है। देखिए यहाँ पर y है और x है। यहाँ पर भी देखिए एक y है और 2 x है ना। इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, माइनस और प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखिए आपका है 8x² -11x² एंड -6x²। अब देखिए अगर इसके आप फैक्टर करें तो आपको मिलेगा 8x, 6 के करेंगे तो मिलेगा -6x एंड x, 11 वाले के करेंगे तो आपको मिलेगा -11x। तो यहाँ पर देखिए हमें सारे में जो वेरिएबल फैक्टर है वो सेम मिल रहा है, इसीलिए ये क्या है, लाइक फैक्टर्स हैं। ऐसे ही -100x एंड 3x मिल जाएगा एंड -11y(x) एंड 2xy, ये भी सेम हो जाएंगे क्योंकि -11y(x) है तो इसमें फैक्टर्स क्या होंगे, -11y एंड x। ऐसे ही जब आप 2xy का निकालेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, एक मिल जाएगा 2, एक y है और दूसरा x है। तो सीरियल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप 2xy लिखें या 2yx लिखें, तीनों है तो मल्टीप्लिकेशन में आप लिखें 2 × y × x या आप लिखें 2 × x × y। आप बात तो एक ही ये रहेगा 2xy ही, तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन ही होना है, इसीलिए फैक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है बी पार्ट एंड द लास्ट पार्ट। हेयर यू हैव टू फाइंड द लाइक टर्म्स। यस, लाइक टर्म्स। सो 10PQ एंड नेक्स्ट देखिए PQ कहाँ पर है, ये PQ लिखा हो या QP लिखा हो बात एक ही है, एंड 1 इज़ दिस। तो देखिए 10 -7 एंड 78। ऐसे ही नेक्स्ट लेके चलते हैं 7P। तो देखिए P कहाँ कहाँ है, 7P, एक तो ये हो गया 7P, एक हो गया हमारा 2405P, यही दो हैं। देखिए 7P एंड 2405P। क्यों, क्योंकि दोनों का वेरिएबल जो है वो सेम है। कांस्टेंट सेम होना हो कोई फ़र्क नहीं, वेरिएबल टर्म जो है वो सेम होना चाहिए। ऐसे ही 100Q एंड 8Q। सो दिस इज़ 8Q एंड -100Q। ठीक है, नेक्स्ट है -P² एंड Q²। This is 12P² and Q². That's it. And this is the answer. Now we have -23. So we have to find another digit, that is 41. So -23 and 41. यहाँ पर एक भी वेरिएबल नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट है, इसीलिए ये दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे। ओके, थैंक यू।